Hello everyone and welcome to Pyramid Technoplast Limited earnings con call for Q4 and FY24. We have with us on the call today Mr. Bijay Kumar Agarwal, Managing Director and Chairman of the company, and we have Mr. Jay Prakash Agarwal, Full-time Director and Chief Financial Officer of the company. I must remind you that the discussion on today's call may include certain forward-looking statements and must be therefore viewed in conjunction with the risk that the company may face. I would now request the management to take us through the company's business and strategic updates, post which we will open the floor for questions. Thank you, and over to you, sir. Hi, good morning, everybody, and good morning, all my friends. So thank you for joining us on Q4 FY24 earnings con call. Hope you had a time to go through our investor presentation, which we have already uploaded on the exchange. So now this year, with all your support, we have achieved a significant milestone with our IPO and listing on both NSE and BSE. Our journey began with a small plant in Silvassa at Dadra Nagar and Haveli, and through our hard work and dedication, we expanded our operations to Bharuch, Gujarat, and beyond. Today, we proudly operate 7 manufacturing units with 8 on the way in Maharashtra, and going forward, more locations to be added in near future. Our goal has always been clear: to maintain best quality products, provide timely service to our clients, and offer competitive pricing. Over the years, we have expanded our offerings from MS drum, polymer drums, and to intermediate bulk containers, IBC, meeting the bulk industrial packaging needs of our clients across various industries. We continue to scale our business across all 3 verticals to better serve our clients. Now, coming to the strategic updates and planned CapEx this year. We have increased our metal drum capacity from 30,000 to 50,000 units per month using automation at our Unit 6 Gujarat plant. And as highlighted in our earlier communications, we have already purchased adjacent land to our existing Unit 6, and in the near term, we are targeting to reach around 70,000 units per month capacity by September 2024, with potential to reach 90,000 units by furthermore automation. At Unit 7, we have already commissioned line 1 for IBC in July 23, which is at 50% capacity. We plan to order line 2 IBC very soon as we cross 70-75% of the capacity. Our strategy is to expand in a phased manner to ensure steady growth and efficiency. Also, the land initially proposed for Unit 8, adjacent to Unit 7, will now be merged into Unit 7 for better. Jay, sir, we lost your voice. Sorry, friends, unfortunately, we got disconnected. So let me start it again. So this year, we have achieved a significant milestone with our IPO. Thanks for all your support. Our journey began with the plant in Silvassa, and with our hard work and dedication, we expanded our operations in Gujarat, Bharuch. Now we are proudly have 7 units running, and 8 is on the way in Maharashtra. And going forward, more locations to be added in near future.
Sir, I think we lost their voice again. I'll just check with them. Yeah, they're rejoining. Don't worry. Yeah, Jay, please go ahead now. So this year we have added, we have increased our metal drum capacity from 30,000 to 50,000 units per month with automation at Unit 6. And as highlighted in our earlier communications, we have purchased adjacent land to the Unit 6. In the near term, we are targeting to reach 70,000 units by September 2024, and with a potential to reach 90,000 units per month. At Unit 7, we have already commissioned line 1 of IBC in July 23, which is currently operating at 50% capacity, and we plan to order line 2 for IBC soon. Our strategy is to expand in phased manner to ensure steady growth and efficiency. Also, the land initially proposed for Unit 8 will now be merged into Unit 7 for better efficiency and will allow us to expand IBC and SDP polymer drum production there, with civil work already underway and is expected to be completed by end of Q3. Our recently announced acquisition of land at Wada in Maharashtra, we have commenced civil work there. Phase 1 CapEx, including the purchase of land and civil work, is estimated to be around 40 to 45 crore is expected to be completed by Q4 2025. Now we plan to gradually ramp up the capacity over 2026 and financial year 2027, aiming to achieve approx 150 crores in revenue. The entire plant capacity will be developed in 3 phases in 4 to 5 years, with a total CapEx of 100 crore and revenue potential of around 400 crores from the Wada plant. So for this financial year, our overall volume during the year increased by 19% year-on-year, driven by growth across all 3 verticals. In financial year 2024, our volume for IBC grew by 27.2% year-on-year basis, metal drums by 21.1%, and SDP drums by 16.4%. We ended the year with a total income of 537 crores, achieving a growth of 11.5% year-on-year basis. And EBITDA margin during the year 2024 stood at 9.1%. As per the pricing norm in the industry, typically raw material prices changes are reflected in the selling price as monthly prices are announced. However, we maintain an inventory of around 45 days, and we see a lag in cost reduction when raw material prices are falling. This lag affected our EBITDA margins during the year. We do benefit from this lag when raw material prices are rising. We have seen recovery from lows in January and hope we benefit by this in 2022 in the financial year 2025. And this can be seen on our Q4 earnings also. Balance sheet remains healthy as we have a net cash balance sheet. To expect to continue maintain a healthy balance sheet, and CapEx is expected to be funded from internal accruals and cash balance to maintain net debt zero balance. We remain optimistic about the future and are committed to deliver value to our stakeholders. And once again, I thank all my stakeholders, all my investors. Now our floor is open to question and answers. Thank you very much. Thank you, sir. So anyone who wishes to ask a question, please raise your hand using the reaction button below. So we have the first question from Miss Amishi Gupta. Please go ahead. Hello, I'm speaking from Nivesa Investments, and my question is, the capacity utilization for the financial year 24 has fallen by 2.2%, even though volumes have been increasing. So is this because Unit 8 is under construction, or are there other reasons as well? Because Unit 7, we are running at 50% capacity now. So once it will be utilized or more than 75%, then you can see the capacity utilization will be higher. Okay, and what is the optimal capacity utilization across all your units, especially Unit 7? So it is around 65 to 70%.
Hello. All right. Thank you. Thank you. Thank you. We have the next question from Mr. Devesh Vora. Please go ahead, sir. Sir, thanks for giving me an opportunity to ask you a question. I have seen your presentation, and from that, I understand that because of the raw material cost, this year you had the profit degrown by 46 crores. Am I right in making that statement? If everything would have been normal as per the 23 figures, it would have been 46 crore, which you have lost because of the raw material movement, which is against your selling price. So, is it safely to understand that everything would have been normal, your profits would have been 76 crore? Yes, sir. 76 crore कैसे होगा? 29 crore is your existing profit. If I add 46 crore, it is roughly around 75 crore. No, Devesh, that number that you are referring to is the revenue bridge number. So had prices stayed where they were last year, revenue would have been higher by 46 crore. But we don't make 100% margin. Our EBITDA margin is around 9 to 10%. So 4 to 5 crore of EBITDA loss is there because of this. Okay. So fair enough. I understood. I was understanding it as a raw material cost only. Okay. Revenue. It's a revenue which has been. Okay. My second question would be that since you are doing expansion in IBC second line and this, so how fairly do you think you will have a projection for 2025 in terms of your top line growth and your because we see a lot of expansions happening, but we are not able to decipher into the growth pattern which will happen in your capacities and your top line for 25 and then 26. देखिए आप हमारा क्या है, मेटल ड्रम अभी कैपेसिटी हमारी फुल चल रही है, प्लास्टिक ड्रम जितनी भी कैपेसिटी है वो पूरी फुल चल रही है, आईबीसी में कैपेसिटी एक्स्ट्रा है, आईबीसी में जैसे ही ये मशीन हमारी 60-70% जाने लगेगी, हमारा ऑलरेडी मशीन ऑर्डर दिया हुआ है, वो लाइन वहां ऐड करेंगे, प्लस जो मेटल ड्रम की कैपेसिटी अभी 3 महीने में ऐड हो जाएगी, उससे वॉल्यूम आएगा, प्लास्टिक ड्रम भी यूनिट 8 में हम लगाएंगे, उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, तीसरा जब महाराष्ट्र में चालू करेंगे उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ जो भी होगा कैपेक्स करेंगे, मशीन ऐड करेंगे, उससे ही वॉल्यूम बढ़ने वाला है, और वो हमारा हर समय पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है. So if you can tangibly put it in numbers or in percentage terms, the growth of top line, which can happen. 20% की ग्रोथ इस वॉल्यूम की इस साल भी आएगी. यदि ये प्राइस जो नीचे गए हैं वो ऊपर आ जाएंगे तो वो आपको रेवेन्यू के हिसाब से ज्यादा भी दिखने लगेगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ हम ये मानते हैं कि 20% के आसपास हमको मिलेगी इस साल में, और वो जब महाराष्ट्र यूनिट चालू होगा तो उस साल में वॉल्यूम ग्रोथ और ज्यादा दिखेगा. Okay. And you are planning a capex of 45 crore, but if I see your cash accrual, which is around 35 crore or 40 crore, so are you planning to raise some debt or you will always? इस साल भी जो हमारा कैश रेवेन्यू आई है कंपनी में 47 करोड़ की आई है, उसमें से 45 करोड़ हम कैपेक्स में डाले हैं, और अगले साल भी हम 45 से 50 करोड़ का जो बोल रहे हैं, तो हमारा जो कैश अर्निंग है उसी से वो होने कैपेक्स करेंगे. So you are planning to keep the company as debt free? Yes, कोशिश यही है हमारी पूरी. For utilizing all the phase 3 of WADA, we will utilize it from our internal accruals. Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity. Thank you. We have the next question from Mr. Majid Ahmed. Please go ahead, sir. Audible? Clear? Yes. You're audible. Morning, sir. Good morning, Vijay. Good morning, sir. Good morning. So I'm from SmartSync Investment Advisory Services. So my first question, sir, is that so FY24 has been slightly weaker what we expected. How is FY25 is going to look in terms of the raw material pricing? Any sort of disruption that you're looking, sir? How do you see FY25 going forward? Because as you said last time that it has bottomed out, but how do you see going forward? Any sort of improvements? देखिए ये रॉ मटेरियल का प्राइस बॉटम आउट हो गया है, ये बात सही लग रहा है, आज भी यही लग रहा है कि बॉटम आउट हो गया है. यहाँ से स्विच ओवर चेंज मैंने बढ़ना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी इससे नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा.
तो वो जो लॉस हो रखा है वो ठीक है, हो गया, वो कभी भी आज नहीं कल वापस रिटर्न मिलेगा। Okay. और वो मार्केट ऐसे अभी स्टेब्लिश हो गया है, वॉल्यूम है, ग्रोथ है, सेल है, सब है। At the same time, the chemical companies are also, growth is there. We have seen this year we see an opportunity in the chemical sector also, and वीडियो नहीं जा रहा। in HDP sector also. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, you're audible, sir. You're audible. Yes, sir, you're audible. This year, all the entire industry is hoping to be good, because the chemical sector is also recovering. At the same time, the HDP, the demand is coming from them. So as the demand will grow, the prices will start increasing. This is how it is. पिछली मीटिंग में भी बोला था, केमिकल इंडस्ट्री में डिमांड की कमी नहीं है, प्राइसिंग का जो उनको भी इफेक्ट आया था, इसलिए उनकी मार्जिन कम हुई है, लेकिन कोई वॉल्यूम ग्रोथ तो सब जगह है, केमिकल में है तो हमारा भी ग्रोथ है। Thanks for the detailed answer. And my last question is, what's your upcoming plans on the breakup between the polymer drums, IBC, and how are you going to look? So, what is the breakup currently, and how are you going to look forward in the upcoming years between those products, IBC, polymer drums, and others? ब्रेकअप आप वॉल्यूम वाइज पूछ रहे हैं? Yes. Yes, sir. ये लगभग 33% का आईबीसी का है वॉल्यूम इस समय, और 10% हमारा मेटल ड्रम का, और 47% मेरा एचडीपी ड्रम से आ रहा है। तो तीनों में ही ग्रोथ होगी। ये 10% का जो है आगे 11% हो जाएगा एमएस ड्रम। ये आईबीसी जो देख रहे हैं वो 36-37% हो जाएगा, रेस्ट पॉलीमर ड्रम हो जाएगा इस साल 25 में। All the best. Thank you. We have the next question from Mr. Parth Kotak. Please go ahead, sir. Hello, sir. Thanks for taking my question. It is heartwarming that despite a lower raw material price and finished good price, we've managed to grow margins और market share भी हमने बढ़ाया है। सर, मुझे थोड़ा कैपेसिटी के बारे में समझना था। Our nameplate, we've just mentioned कि MS drums में हमारा full utilization पे चल रहा है। But last time I think you mentioned कि MS drums में हमारा MTPA में capacity है 10,800. Is that the correct understanding as of end of? हिसाब से कुछ मशीन लगी हुई है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। वो जगह भी बन रही है, वो अभी ऐड हो जाएगी सब जगह, तो उसके बाद हम बना पाएंगे। अभी जो हम बना पा रहे हैं, जितनी जगह है उतना ही बना पा रहे हैं, उतना ही रख पा रहे हैं। तो जैसे वो कैपेसिटी वहां पर ही पहुंचेंगे जो 10,800 हम दिए हुए हैं, लेकिन वो जगह जैसे ही मिलेगी और उसमें कुछ मशीनें ऐड हो जाएगी जो ऑर्डर दी हुई है, पाइपलाइन में रेडी है, तो वो कैपेसिटी उतनी हो जाएगी। और जब आप देखेंगे कि एमएस ड्रम छोटा सिक्का दिख रहा है, वो कल वही अर्निंग का पैसा करेगा जब जैसे ही हम 50,000 ड्रम पहुंच जाएंगे, उसमें अच्छी खासी अर्निंग दिखेगी मेरे। Okay, perfect, sir. And same would be the case with IBC and polymer drums, right? I think, sir, एक बार मुझे सिर्फ अगर अपना जो current capacity है, और I think our guidance was कि हम FY25 के end पे MS drums में 20,000 टन पे होंगे, IBC में 6 lakhs units पे होंगे, and polymer drums में 48,000 units पे होंगे, 48,000 metric ton पे होंगे. Is that the correct understanding? देखिए, इतनी जो कैपेसिटी है हुई, जो महाराष्ट्र का जब मेरा यूनिट सेट होगा ना, उस समय वो कैपेसिटी पर पहुंचेंगे। ओके, अभी गुजरात में है, गुजरात में मेरा जो एमएस ड्रम का 10,000 दिया हुआ है वो उतना ही रहेगा। वाडा जो महाराष्ट्र का चालू हो जाएगा तो वो फिर डबल कैपेसिटी वहां हो जाएगी मेरी। We are coming with all the 3 products, polymer drums, IBC and metal. वहां पर जब हम चालू हो जाएंगे, वो जगह मेरे को बोल रहे हैं, वो तो सितंबर में, दिसंबर मान के चलता हूँ, दिसंबर तक मिल जाएगी। वहां की भी सब मशीनें ऑर्डर दी हुई है, फिर वो चालू होते हुए 2-3 महीने में, इस साल में कुछ हो सकता है, 1 महीने, कुछ 2 महीने, हमको उसका भी कुछ बोलूं। ठीक है सर, fair. Secondly, on the margins front, sir, I think we've had a conversation कि obviously जब prices गिर रहे होते हैं तब हमको margin पे मार लगता है. That is why क्या है सर, ये 10-12 साल के बाद ऐसा हुआ है कि पूरे साल तक मार्केट में फॉल था, नीचे जा रहा था पॉलीमर प्राइस। इस समय में हम उसमें स्टॉक में लॉस गेन किए हैं। करेक्ट। लेकिन अभी जो प्राइस है ये एकदम बॉटम लग रहा है, बॉटम ही दिख रहा है, और कुछ ना कुछ इंटरनेशनल मूवमेंट है तेजी ऊपर की तरफ ही।
राइट तो राइट ये कभी तो रिबाउंड होगा, उस समय फिर वो दिखेगा कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया है बिजनेस। करेक्ट सर, बट इफ कोई कारणवश अगर प्राइसेस रिबाउंड नहीं करते और यहीं रहते हैं तो भी क्या हम 10% मार्जिन बना पाएंगे या फिर? मार्जिन तो मेरी पहले दिखती थी, वो मार्जिन रहेगी। अब यहाँ से नीचे यदि प्राइस नहीं जाते हैं तो रॉ मटेरियल का जो लॉस है वो खत्म हो जाता है। अभी तो मैंने लॉस बुक कर लिया, इस साल बैलेंस शीट में है। अभी जो भी है तो अर्निंग ही होने वाला है उसके। राइट 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 ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, हमारा जो अदर इनकम है दैट हैज जम्प शार्पली फ्रॉम 33 करोड़ टू 55 करोड़, ये क्या नेचर है अदर इनकम का? नहीं, ये क्या है कि जो फॉरेक्स है हम बुक करते हैं, इंपोर्ट उसकी वो एक्स्ट्रा वो 3 करोड़ के आसपास फॉरेक्स का है इनकम उसके अंदर। और कुछ अदर इनकम में रेवेन्यू में देख रहे होंगे तो आपको होगा जो ट्रेडिंग में जो आता है वो रॉ मटेरियल जो हम सेल करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। अगर और क्वेश्चंस होंगे तो मैं क्यू में ज्वाइन करूंगा सर। थैंक्स। Thanks, Parth. We have the next question from Mr. Priyank Parekh. Please go ahead. Thanks for the opportunity. Am I audible, sir? Good morning, sir. Good morning. Yeah, sir. मेरा in terms of अपना revenue number, can you guide us कि हम FY25 में और FY26 में हमें कहाँ दिख रहा है? देखिए, ये तो प्राइस फॉल होने से, नहीं तो मैं पहले भी बोल रहा था कि 20% के आसपास ग्रोथ हम लेते हैं। यदि प्राइस ये ड्रॉप नहीं होता तो आज 580 से 600 करोड़ का टर्नओवर इस साल भी हो रहा था मेरा। 20% की ग्रोथ आई। अगर 20% की ग्रोथ हमको लगता है कि हम अचीव आराम से करते रहेंगे। और जब महाराष्ट्र में घुसेंगे तो वहां पर कुछ उस साल में हमको रेवेन्यू 20% से ज्यादा का ग्रोथ मिलेगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको लगता है 900 से 1000 करोड़ पे कंपनी दिखेगी सर। FY24 में हम FY24 में we did 533 CR and so on that 20% would be 640 CR. So we are seeing FY25 में around 640 CR. हाँ, लगभग 600 करोड़ से ऊपर जाएगी। 650 करोड़ के आसपास का सेल आएगा। ओके। एंड रेवेन्यू लेवल पे अगर मिक्स देखें पॉलीवर, एमएस एंड आईबीसी में, तो वुड दैट एमएस में हमारा लगता है कि उस समय 11% के आसपास रहेंगे हम रेवेन्यू में बाय द एंड ऑफ 2020। और आईबीसी का 36 से 37% रहेगा। ओके। और 43% के अंदर पॉलीमर ड्रम आ जाएगा। रेवेन्यू ऐसे स्विच ओवर होती रहेगी। ओके। और 10% जो अदर्स है वो तो रहेगा ही। हाँ, नहीं 10% को मामूली है और 10% के आसपास रहने वाला है। ओके। तो सर व्हाट आई एम सीइंग कि वी वुड बी रिक्वायरिंग 27,000 metric tons of polymer drums capacity if we expect 75% utilization, right? MS drums के लिए we would require 10,650 metric tons and IBC के लिए we would require 366,000 के around. If I expect capacity utilization to be around 75%, right? हाँ, तो for FY25, are we on a track to achieve this much capacity expansion? 25 में क्या बोला कुछ सर ने? हमें जो अभी कैपेसिटी चाहिए फॉर FY25 ये सब अचीव करने के लिए 20% ग्रोथ। हाँ, देखिए बता, देखिए एमएस ड्रम की मेरा जो है कैपेसिटी अप्रैल मार्च से ऐड हो गई थी और कुछ ना कुछ वॉल्यूम अभी बढ़ रहा है। इस क्वार्टर में भी दिखेगा कि बढ़ रहा है। पॉलीमर ड्रम में जो जहां थी वहां पर मैंने मशीन लगा ली है। अभी जो मेरे को 2-3 महीने में एक जगह बन रही है वहां पर मैं पॉलीमर ड्रम डालूंगा। मशीन का ऑर्डर ऑलरेडी 5-6 मशीन का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, करेंगे। प्लस हम आईबीसी की ऑर्डर मशीन की दी हुई है। अभी तो मेरे पास ऐसे ही एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। 3 से 4 महीने 5 महीने में ये कैपेसिटी फुल होगी, तब तक वो दूसरी मशीन आके ऐड हो जाएगी। सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है। हम जो 20% के आसपास ओवरऑल सब में ग्रोथ आराम से कर लेंगे। ज्यादा हो सकता है, मेरे को लगता नहीं कि हम उससे कम करेंगे ग्रोथ।
और सब जगह Okay. मेरा भी रेडी है, मशीन का भी ऑर्डर दिया हुआ है। और है जब हम महाराष्ट्र का जो मशीन के ऑर्डर दिए हुए महाराष्ट्र में जब हम मिलेगा जगह और वहां चालू करेंगे तो वो वॉल्यूम भी अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा। सर महाराष्ट्र में तो आई थिंक वो बोलिए। 26 के बाद ही होगा ना? मैंने जो भी आना है। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन लोगों का कहना है कि हम सितंबर तक दे देंगे। हम मानते 3 महीना एक्स्ट्रा लिया होंगे, दिसंबर तक देंगे। दिसंबर तो हम सोच रहे हैं कि साल में भी हमको 1-8 महीने की कुछ ना कुछ रेवेन्यू उससे मिल सकती है। क्वार्टर 4 में कुछ ना कुछ आना चाहिए। सब ठीक चलेगा। क्वार्टर 4 ऑफ FY26। हाँ 26 में मिलेगी। हाँ तो सो मेरे पास और जगह बन जाएगी तो मैंने भैया दिस इज क्वार्टर 4 ऑफ FY25 नॉट 26। 2025 not 26। ओके एक मिनट। ओके गॉट इट। ओके तो नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के लिए वी वोंट हैव महाराष्ट्र एंड फ्रॉम द 5th quarter we would have Maharashtra phase 1 ready. Majorly Maharashtra you can consider in 2026 only. Okay, got it. Okay, yeah. So and sir, we had initial target of 1000 CR for FY26 as a whole. तो अभी वो अचीवेबल लग रहा है? हाँ जरूर। मैं 3 साल बोला हूँ सर, 3 साल में लगभग 900 से 1000 करोड़ पर जरूर होंगे। 27 you mean? 27। Okay, ठीक। Okay, thank you sir. I'll join back the queue. Thank you, Priyank. We have the next question from Mr. Madhur Rathi. Please go ahead, sir. सर मैं जानना चाहता था इस क्वार्टर में हमारा इन्वेंट्री लॉस कितना था और पूरे साल में इन्वेंट्री लॉस कितना था? 5 करोड़ के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि मेरा स्टॉक पर इन्वेंट्री लॉस हुआ होगा। सर क्वार्टर 4 में और क्वार्टर 4 में कितना? पूरे साल का जो हम इन्वेंट्री लॉस देख रहे हैं वो करीब 5 करोड़ के आसपास। अच्छा। और सर मेरा ये समझना सही है कि जो हमारा 50,000 से 70,000 कैपेसिटी हो जाएगा MS ड्रम्स में, उसका हमारे पास मशीनरी है, बस जैसे लैंड का जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लैंड भी ले लिया है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो लग जाएगा। अच्छा सर, बस एक आखिरी प्रश्न था सर। हमारे मार्जिन आपने जैसा बताया कि प्राइसिंग और इन्वेंट्री लॉस की वजह से हमारा इफेक्टेड था, तो हम FY25 में और FY26 में क्या हम ये 10 से 12% के बीच में देख सकते हैं? तो जरूर उम्मीद करते हैं कि 10% होना चाहिए रहेगा। We are expecting to 10 से 11 के बीच में कुछ एक्सपेक्ट करना है। ओके थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. Participants, anyone who wishes to ask a question, please raise your hand using the reaction button. We have a question in the chat box from Mr. Rohan Patel. He's asking if, so considering all the capex and expansion we are doing, what would be our top line in FY28 and what would be the normalized margins? हेलो 28 का पूछ रहे हैं। बताया ना सर कि जो हम बता रहे हैं कि 900 से 1000 करोड़ के आसपास हम रहेंगे। 10% के हिसाब से उसमें जोड़ सकते हैं कि भाई 90 करोड़ के आसपास हम मानते हैं कि पेट आना चाहिए। एपी डाटा सॉरी। So we have the next question from Mr. Saptashri Chatterjee. Please go ahead, sir. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। मेरा क्वेश्चन है कि जब नेक्स्ट ईयर हम बोल रहे हैं कि अराउंड 600 से 650 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा, मतलब अनदर 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू। अब जब मैं बिजनेस मॉडल से देख रहा हूँ तो एसेट टर्न मान लीजिए कि 5 टाइम एसेट टर्न होगा, तो विच मीन्स कि 20 करोड़ का शायद केपेक्स रहेगा। ऑल्दो आपका केपेक्स प्लान 40 से 45 करोड़ का केपेक्स आपने लिखा है, बट एज ए बिजनेस मॉडल में जब सोच रहा हूँ कि 5 टाइम्स एसेट टर्न मतलब एवरी 100 करोड़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के लिए मुझे मे बी आई हैव टू डू
20 crore of capex and I have another 80 days of working capital, meaning that 20 से 25 करोड़ का another working capital चाहिए, और नेक्स्ट ईयर का अगर 600 करोड़ का रेवेन्यू मतलब 10% के एबिडा के मतलब से 60 करोड़ का एबिडा बन जाएगा अपना, तो फ्री कैश फ्लो तो सर मतलब मुझे बहुत नेग्लिजिबल दिख रहा है, तो कैसे देखना चाहिए ऐसे बिजनेस को? वर्किंग कैपिटल तो लिमिट है ना सर, वर्किंग कैपिटल लिमिट मेरी है जो बैंक के हम यूज नहीं करते हैं। यदि जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग कैपिटल तो यूज करेंगे ही ना। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब इस बिजनेस में कैसे फ्री कैश फ्लो बनना चाहिए इसमें? जो जैसे बन रहा है वैसे ही, अब 9 से 10% मेरा आ रहा है फ्री डाटा, उस हिसाब से आप जैसे रजिस्ट्रेशन और जो भी है वो 46-47 पेड तो मान लीजिए 30 करोड़ का आया है, लेकिन कैश फ्लो तो 47 करोड़ का कंपनी में आया है, वो सब पैसा कंपनी में ही है। अच्छा, उसी से ठीक है, करोड़ का है ना। understood. And second is, sir, when I see in your business that you are expanding in like states like Maharashtra, can you give some indicative market share that we have in each of these like polymer drums, IBC, कितना market share है हमारा, और जब हम compete करते हैं और clients के पास जाते हैं तो हमारा proposition कैसा रहता है, मतलब वो pricing में होता है कि in which part we win the deals? सर 3 तरीके से मिलती है सर बिजनेस, एक तो आप सर्विस टाइमली दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं। अभी हम बहुत जगह कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेट हमारा सिलवासा से देंगे या गुजरात से देते हैं तो फ्रेट ज्यादा होता है तो हम उसको नहीं अचीव कर पाते हैं, या हमको लो मार्जिन मिलती है, वो वहां जाने से उसका वॉल्यूम मेरे को बढ़ जाएगा, उससे में आ जाएगी मार्जिन, वो जो 10-11% दिखता है वो वहां पर भी रहेगा। अंडरस्टूड। और हमारा कंपटीटर कौन है सर ये सेगमेंट्स में? टाइम टेक्नोप्लास्ट है। अच्छा, और कोई है क्या बड़ा कंपटीटर? बड़े में तो ये ठीक टाइम ही है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। Thank you. We have a follow-up question from Amishi Gupta. Please go ahead. Yes, thank you so much for letting me ask another question. सर मेरे को बस ये पूछना था कि आपके FY25, FY26 और FY27 के EBITDA और पैट के प्रोजेक्शंस क्या लग रहे हैं? Pyramid Technology Zone. Someone else is speaking as well. हाँ जी, और जो वोलेटिलिटी दिख रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट्स में, उनके प्लान क्या है मैनेज करने के लिए? रॉ मटेरियल का प्राइस को मैनेज क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट्री चलानी है आपको, रॉ मटेरियल हर महीने लेना ही पड़ता है। वो एक एवरेज हम लोग का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हम लोग परचेज करते हैं। जनरल आज तक यही होता था कि कभी 2 महीना रेट कम हुआ, 2 महीना रेट बढ़ा, बराबर हो जाता था। ये पहली बार है कि 12 महीने तक रेट कम होता था, जो इतना बॉटम आउट हो गया। पॉलीमर का तो उसका कोई साधन नहीं है, उसके बाद भी कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉस गेन नहीं किया है, फिर भी ठीक है मेरे को लगता है। और एक साल ऐसा हो गया तो कभी ना कभी दूसरे साल में ऐसा मौका भी आता है जिससे आप उसको बाउंस बैक कर लेते हैं। और लगभग हम जो बार बार बोल रहे हैं कि 20% के आसपास का हमारा वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा, तो ये यहाँ से आप 20% का वॉल्यूम ग्रोथ के साथ वैल्यू ग्रोथ भी समझ सकते हैं कि 20% का रहेगा। लास्ट आगे 3 साल का जो फिगर होता है उसी हिसाब से 900 से 1000 करोड़ हम बोलेंगे, हम 3 साल में 900 से 1000 करोड़ जाएंगे। और ईपी डाटा वगैरह हम जो बोल रहे हैं 10% के आसपास, तो 10% के आसपास रहेगा 3 साल के अंदर। और प्रोजेक्शन क्या है रॉ मटेरियल्स का FY25 और FY26 के लिए? आज का जो रेट को मान के चल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसी प्राइस को मैं मान रहा हूँ कि आगे भी 3 साल तक वही रहेगा। यदि वो बढ़ता है तो हमको मार्केट में बढ़ा के रेट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है घटेगा तो घटा के मिलेगी। तो आप बल्क में ये अभी लग रहा है कि ये बॉटम आउट है, उन लोगों को पॉलीमर जो बना रहे हैं उनको भी इसमें लॉस है, तो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं होगा, इस रेट में कहीं ना कहीं टर्न अप आ ही जाएगा मार्केट। तो आप अगर प्राइसेस डाउन है तो आप रॉ मटेरियल बल्क में परचेज करने का प्लान कर रहे हैं? ऐसा नहीं कुछ करता हूँ मैं, उसमें मैनिपुलेशन नहीं करता हूँ, जितना यूज होता है उतना हर महीने का है वो लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। Thank you. We have a follow-up question from Mr. Priyank Parekh. Please go ahead. Yeah, thank you for allowing me, sir. Sir, just wanted to understand जो अपना अदर एक्सपेंस लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी बढ़ गया है,
So what is the reason behind that, and how we are seeing it going forward for next 3 years? उस समय अदर एक्सपेंस बढ़ जाते हैं जो नए So प्लांट हाँ, अभी तक क्या किया था कि कैपेक्स हम कर लिए यूनिट 6 तक बना लिया तो 7 नंबर तक, और उसके बाद में 5 नंबर 6 नंबर, उसके बाद सब उसी मशीन ऐड हो रही थी, तो अदर एक्सपेंस कुछ नहीं रहता है। लेकिन नया यूनिट डालते हैं उसमें नया एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है। अभी वाडा में काम चल रहा है तो उस समय इसके कारण नए प्लांट जब बनते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होता है, प्लस उसमें और भी तरीके के एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाते हैं, वही एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिख रहा है। ओके सर। सो अगर हमें लेना है कि FY25 के लिए कितना होगा, तो ये लेवल से हाउ यही लेवल समझ के चलिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, अभी कम ही होगा, क्योंकि उससे फिर बिजनेस मिल रहा है वहां से, उधर एक्सपेंस धीरे धीरे वही कंपलसेट हो जाएगा। From that sources, so then you will not see that the kind of difference between the other expenses. ओके, बिकॉज हमारा जो यूनिट सारे लगाने थे वो अभी लग गए हैं। लगने मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है। So in next to third quarter we will 3 से 6 महीने में सब यूनिट सेट हो जाएंगे सर। आपने only देखा the था Maharashtra unit will be starting in the खाली उस समय मशीन ऐड होगी, प्रोडक्शन आएगा, वॉल्यूम आएगा, then तो you will keep on adding machines. That's it. ओके ओके, समझ गया सर। सो ओके, एंड सर इस ईयर का कैपेक्स प्रोजेक्शन अगर नंबर्स में हमें लगाना है तो व्हाट वुड बी दैट FY25 का? इस ईयर का नहीं, मतलब कैपेक्स 45 करोड़ के आसपास बोल रहा हूँ ना, 45 से 50 करोड़ का कैपेक्स करेंगे हम इस साल में। जो महाराष्ट्र यूनिट का है वो ही सब बहुत मिक्स है, गुजरात महाराष्ट्र मिलाकर we are proposed to do around 40-45 capex for financial year. अभी महाराष्ट्र का जो आप अलग से देख रहे हैं ना 40-45 करोड़, उसमें से ऑलरेडी कुछ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपये हम लगा चुके हैं ना। हाँ, इस साल तो वो उसमें महाराष्ट्र भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, तो इस बार भी जो होगा वो दोनों जगह मिक्स होगा, गुजरात में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा। ओके। सो FY24 के एंड में जो हमारा 14 करोड़ का दिख रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो आप बोल रहे वो आपने कर दिया है? वो कर दिया। ओके, ऑन बियॉन्ड दैट 45 ईयर जितना आएगा फॉर FY25? हाँ। ओके, एंड वी फील दैट कि वो इंटरनल अक्रूवल से हो जाएगा, वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे ही करेंगे, इंटरनल केस ही होगा। ओके ओके सर, ओके, या थैंक यू, या थैंक यू। Thanks, Priyank. Participants who wish to ask a question, please raise your hand using the reaction button. We'll take a follow-up question from Mr. Madhur Rathi. Please go ahead, sir. सर मैं ये जानना चाहता था, हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स है MS ड्रम में, सर वो 12-13% का EBITDA मार्जिन करते हैं, और सर हम इतना सारा वैल्यू ऐड करते हैं पर भी हमारा मार्जिन 9-10% के आसपास है। सर तो ये डिफरेंस क्यों है? मैंने बताया था, ये जो है कैपेसिटी का है। अभी हम अर्निंग स्टेज पे हैं 30,000-35,000 टन पर, जैसे ही हम 50,000 क्रॉस करेंगे, जो भी अब उसके अंदर कैपेसिटी ऐड होगी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा खाली पावर कॉस्ट रहेगा, तो नेट मार्जिन बढ़ने लगेगी। वो जो आप दूसरे का देख रहे हैं उनका मैं भी जानता हूँ, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख टन पर पहुंच जाता है। लाख टन यदि 50,000 से ऊपर पहुंच जाएंगे हम, तो मार्जिन आपको मेरे को अगले साल वो भी दिखेगा। मैंने ये बात सुबह भी बताई थी जाके, ठीक है, कोटा सिक्का है, बहुत अच्छा चलेगा। Plus we have done lot of automation also, so that will. तो सर हम इससे हमारा मार्जिन को, इससे MS ड्रम का जो हमारा मार्जिन है उसको 12-13% के आसपास जाते हुए देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं। अभी मेरा मार्जिन आ रहा है, जब कर रहे हैं तो खाली 1% 2% है, जैसे ही हम उसमें वॉल्यूम ऐड होते जाएगा वो परसेंटेज ऑटोमेटिक सारे परसेंटेज को ठीक करेगा। अच्छा सर, 1-2% ही अभी हम मार्जिन बनाते हैं MS ड्रम में, हमारा 1-2% ही मार्जिन है। यूटिलाइजेशन है ना सर, जो हम बना रहे हैं उसमें हमारा खर्चा ही निकल पा रहा है। जैसे जैसे ओवरहेड सारे खर्चे लग रहे हैं, केवल पावर और लेबर खाली लगेगा और वो ड्रम बनने लगेगा, तो 100 रुपए के खर्चे पर हम 300 रुपया 250 रुपया ड्रम के पीछे कमाएंगे।
तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने ही वाला है। अच्छा सर, मुझे एक आखिरी प्रश्न था सर, आप मुझे हमारे प्रोडक्ट वाइज मार्जिन का एक डिफरेंशिएशन दे सकोगे? हाँ, दे देंगे ना सर। बोलिए, कितना हम कमाते हैं एमएस ड्रम, एचडीपी में और आईबीसी में? तो सर 2% कमा रहा हूँ अभी। हेलो। और सर आईबीसी और एमएस ड्रम में? हेलो, हाँ जी सर। एचडीपी ड्रम में मैं बना रहा हूँ का ना 11% के आसपास, 10% 11% के आसपास, और आईबीसी में 13%। चलेगा, 10, 13 और 2 चलेगा सर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. We have the next question from Mr. Arpit Tapadia. Please go ahead, sir. Hi, thank you for the opportunity. Can you just throw some light over the pricing trend during the year? What was the prices at the starting of the year and how it has closed? प्राइसेस जो पिछले 95 हुआ ना। हाँ, 105 से 95 हुआ है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 105 प्राइस था, नाउ इट इज 95 per kg. It is about the polymer price. Same trend is there into the IBC grade polymer as well? Yes, polymer polymer when polymer goes up, it goes up for all grades. Okay. And what is our capacity utilization for the year and this quarter? एचडीपी बताए, एचडीपी में और एमएसडब्ल्यू में तो 100% यूज ही कर रहे हैं सर। खाली आईबीसी की यूटिलाइजेशन जो है वो 50% हो रही है नए प्लांट। यूनिट 7 we are utilizing at 50%. Going forward in next quarter, we are hopeful that we'll increase by 10-15%. So I'm not able to reconcile then. You're guiding about 20% volume growth. So in case एमएस ड्रम और पॉलीमर में हम ऑलरेडी 100% यूटिलाइजेशन पे है, तो अचीविंग दैट 20% फ्रॉम द एंटायर लेवल फ्रॉम आईबीसी ओनली। मार्च क्लोज हुआ है ना सर। मार्च में मैंने मेटल ड्रम में और कैपेसिटी ऐड की है। ओके। वो अभी क्वार्टर में मिलेगी, आपको दिखेगा कि हाँ एमएस ड्रम में वॉल्यूम बढ़ा है मेरा। प्लास्टिक ड्रम में भी मैंने एक दो मशीन जगह थी वो ऐड की है, उसका वॉल्यूम ग्रोथ भी इस क्वार्टर में आपको दिखेगा। और जब तक आईबीसी में एक्स्ट्रा है ही है, तो तीनों जगह से हमको वॉल्यूम ग्रोथ जो मिलना है। लेकिन आज के डेट का मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि आज में पूरी कैपेसिटी फुल चल रही है। लेकिन हमारे जो 2 महीने 3 महीने में जो जगह है वहां पर जगह हो रही है, तो हम उसमें मशीन डालेंगे, उससे हम वॉल्यूम लेंगे। ईयर के एंड में देखेंगे तो वो 20% का किसी महीने में हो सकता है, 30% का ग्रोथ लेंगे, किसी में 10% का लेंगे। ओवरऑल हम वहां पर 20% के साथ पहुंच जाएंगे ईयर एंड तक। ठीक है। हिस्टोरिकली अगर देखना चाहें पॉलीमर के प्राइसेस, तो हिस्टोरिकली लो क्या है आपके हिसाब से? ये अभी का लो ही है सर। ये अभी जो है वो 10 साल का लो है, अगर ऐसा मान लें। ओके, ठीक है। और ये जो नई कैपेसिटी का जो बात कर रहे हैं, वो कब से अवेलेबल होगी हमें? एक 1-2 महीने के अंदर गुजरात में मिल जाएगा एक जगह मेरा, उसके 1-8 महीने के बाद दूसरी जगह मिल जाएगी। मतलब जून में, उसके बाद सितंबर में, फिर दिसंबर में, ऐसे 3 जगह की तीनों चीज मिलेगी मेरे। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, Arpit. Participants who wish to ask a question, please raise your hand using the reaction button. We have a next question from Mr. Shivam Junjunwala. Please go ahead, Shivam. Hi, sir. Shivam from Lucky Investments. एक question. When we last spoke, हमारा IBC plant का utilization was somewhere around 30%, and because वो ramp up stage में था, हम उसमें break even थे. At around 50% यूटिलाइजेशन पे जो करंटली चल रहा है, या जो 60% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगले क्वार्टर से हो जाएगा,
उस पे क्या हम हमारा 1200 रुपया पर ड्रम या ग्रॉस प्रॉफिट बना पा रहे हैं, या इसमें आप रैंप अप कैसे देख रहे हो आगे जाके? 1000 से 1200 रुपया छूट रहा है सर आज भी मेरे। ओके, ये ब्रेक इवन यूटिलाइजेशन क्या होगा? 40% के अराउंड होगा? इसमें भी ब्रेक इवन नहीं है अभी, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही कर रहे हैं उस यूनिट में। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग सही है कि आगे जाके जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगी फ्रॉम द करंट 50% टू 70-75%, इंक्रीमेंटली हमारी प्रॉफिट्स काफी बेटर स्पीड से बढ़नी चाहिए। बेटर स्पीड तो क्या है, जैसे बढ़ रहा है उसी हिसाब से होगा। ये जो अभी आप 9% इस बार आया है मेरा, वो जरूर 11-10-11 मैंने प्राइस नहीं होता तो 10-11% के आसपास दिखता। अभी ये कैपेसिटी यूज हो जाएगी तो 10-11% जरूर दिखेगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ठीक है, दैट वाज माय ओनली क्वेश्चन। Thank you, Shivam. Participants who wish to ask a question, please raise your hand using the reaction button. We have the next question from Mr. Anant Mutra. Please go ahead, sir. हेलो, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर बस एक ही क्वेश्चन था कि हमारे पास कोई मार्जिन इम्प्रूव करने के लीवर है, जैसे सम प्रोसेस जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं वो हम इन हाउस करेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? वैसा कर रहे हैं सर। अभी मैंने अपना आईडी प्लेट हम बाहर से लेते थे, अभी इन हाउस प्रोडक्शन चालू हो गया है, तो 100 रुपए के पर आईडी प्लेट, एक आईबीसी में 2, किसी में 1-2 टाइप की लगते हैं, उसमें वो सेव होने लगा। ये सब प्रोसेस चलता रहता है। रॉ मटेरियल खरीदने में भी हर समय दिमाग अलर्ट रहते हैं कि किस ढंग से प्रोक्योर करें कि जिसमें ज्यादा मार्जिन मिले, किस समय मार्केट अप डाउन होने की चांस है, उस हिसाब से ही सब करते हैं। कोशिश पूरी रहती है कि कैसे कहीं भी सेव किया जा सके। ओके, सो सर आईबीसी साइड में आपने बताया पैलेट इन हाउस हम कर रहे हैं, बाकी पॉली ड्रम्स या एमएस ड्रम्स में भी कोई ऐसे चीजें जो हम सारी चीज तो इन हाउस ही है। पॉलीमर ड्रम और एमएस में सारी चीज ही इन हाउस है। एक रिंग जो ऊपर की होती है वो आउटसोर्स करते हैं एमएस ड्रम में, या मेटल प्लास्टिक ड्रम में भी। बाकी सारी जितने भी ऐसे सीरीज लग रही है वो सभी इन हाउस बनते हैं। Anything related to plastic we are doing in house. Only few components which we are buying from outside, which doesn't make sense to make in house. Certain thing we are already doing in IBC. We have recently installed. Right now it is under testing. So next quarter you will see that we will not procure that product from outside. We will start manufacturing. As soon as we will start manufacturing, it will start showing on the profit side. So this is how it is. Okay. Oh, thank you, sir. That's it from me. Thank you. We have a follow-up question from Mr. Rohan Patel. Please go ahead, sir. रोहन जी नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, ऑडिबल हो? Yes, sir. Am I audible? Yes. और जैसे आपने बताया कि एमएस में आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% है अभी। हाँ, तो जब आप 100% कैपेसिटी यूटिलाइज 100% जो बोल रहा हूँ ना साहब, जितनी जगह है, जितनी उसके अंदर मशीनरी हम चला पा रहे हैं, जितनी रख पा रहे हैं, तो यूज बराबर हो। उससे ज्यादा अभी हम बनाने के लिए जगह नहीं है, उतने ही बना पा रहे हैं, इसलिए हम 100% बोल रहे हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि उसकी बगल की जो जगह मेरी बन के जून में मिल रही है, तो वो जगह मिलते के साथ ही मेरा प्रोडक्शन वहां पर डबल हो जाएगा। ओके, तो जैसे प्रोडक्शन आपका डबल हो जाएगा, आपकी मार्जिन 2% अभी जो है EBITDA मार्जिन वो बढ़ के 10% ऊपर जाए, तो 10% हो जाएगी फिर। ओके, बस यही मेरा सवाल था, ये जानना था। थैंक यू। Thank you. If anyone has a question, please raise your hand using the reaction button. Sir, I think we don't have any further questions. I'll hand over the call to you. Well, dear friends, thanks for joining us. And as you see in the last quarter, we have improved. Going forward, quarter on quarter, we are going to improve further. This year, we see a very good scope for and good demand coming up in chemical industry, in other segments, which will drive our demand also. And as soon as we will complete WADA project, we are exploring our opportunities in other markets, and soon we will going to announce that. Thanks for joining us. Looking forward to meet you again.
next quarter. Namaste. Thank you. The recording sir, has for taking the stopped. time out. Thank you, Vijay. Thank you, Jeff. Thank you everyone for joining. Bye. Close the call here. Thank you. Thank you.